Welcome to my dear online students. This is another session for class 12th chemistry, and you know that in the previous session we have finished up to colligative properties, and you know that what are colligative properties. I am repeating again and again. Colligative properties are also known as democratic properties. They are those properties which depend only upon the number of moles of the solute particles or number of particles of the solute in a solution. That means finally, we have concluded that colligative property is inversely proportional to molar mass of the solute. Molar mass of the solute. That means of the solute. That means we have discussed, we have seen that whenever any solute is dissolved in any particular solvent, the three things may happen. There are three possibilities. Either the solute may get associated, either the solute may get dissociated, or the solute neither get associated nor dissociated. That we have discussed, and the idea of association, dissociation, or neither association nor dissociation, that is given by, that means the behavior of the solute in the solution is given by Van 't Hoff. That we have discussed in that. And in today's topic, we are going to discuss what is solubility and what are the various factors which affect the solubility. Before going through the solubility, let me give you brief idea again of the solution. What is solution? What is solution? You know that मैंने आपको पहले ही बताया solution क्या होती है. Solution एक homogeneous mixture होता है. Homogeneous mixture. क्योंकि मिक्सचर दो किस्म के होते हैं, होमोजीनस एंड heterogeneous. Heterogeneous or later on we are going to discuss these also in surface chemistry. Here we are going to discuss only shabash homogeneous mixture. That means solution. Solution is a homogeneous mixture. What does homogeneous mixture mean? That means when we are going to mix up two or more than two different substances, either elements, either compounds, the resulting mixture is represented by only one phase. What does that mean? Let me explain you. इसका मतलब क्या है? सपोज मैंने NaCl डाला, ये कंपाउंड है. मैंने यहाँ से मैंने NaCl डाला, यहाँ से मैंने वाटर डाला. तो दो प्योर सब्सटेंसेस को मैंने क्या किया? मिक्सअप किया इन एनी रेशो. उनके मिक्सचर की खुसूसियत होती है, उसमें जितने भी सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं, मिक्सअप होते हैं, वो किसी भी रेशो में हम लेते हैं. और दूसरी बात क्या होती है इसमें? They do not combine chemically, they combine physically. That means here physical combination takes place. During the formation of solution, only physical combination takes place, and the ratio is not fixed here. It can be any ratio, it may be any ratio. That is what I am telling here, that NaCl, I have taken NaCl and I have taken water and I have mixed them. What happened? NaCl is solid, water is liquid. It is liquid phase, it is solid phase. When I combined them, when I mixed them, I got only one phase, that is liquid phase. That is called, अगर मैंने यहाँ पे दोनों फेज को पाया होता, अगर यहाँ पे दोनों फेज एग्जिस्ट करते, तो दैट मीन्स एट द टाइम इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर. मगर जब हम इनको मिलाते हैं, जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, ट्रू सोल्यूशन, हम यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जब भी हम कोई ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे क्या, मुख्तलिफ सबस्टेंसेस को मिलाने के बाद एक ही फेज वजूद में आता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? शाबा होमोजेनस मिक्सचर. और होमोजेनस मिक्सचर में आपको और एक चीज़ याद रखना है, जितने भी सबस्टेंसेस आपस में मिक्स हो रहे हैं वो किसी भी रेशो में मिक्स हो रहे हैं, और वो केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं, वो फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं. ये मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन के बारे में, और मैंने इसकी डिफिनेशन भी बताई थी. इट इज डिफाइंड एज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग
substances whose composition can be varied within limits. That means हम यहाँ पे NaCl और वाटर की कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं अप टू सर्टेन लिमिट्स. दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम डिफिनेशन के पास जाएंगे उसमें हमने बताया होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग शाबाश सबस्टेंसेस. सपोज ये भी एक केमिकल है, ये भी एक केमिकल है, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं मगर केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे बल्कि फिजिकल इंटरेक्शन होती है यहाँ पे जब ये NaCl की सोल्यूशन यहाँ पे बन रही है. तो एक ही फेज वजूद में आता है, दैट मीन खाली लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उसको हम क्या बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. सपोज अगर अब हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करेंगे, मैंने यहाँ पे वाटर लिया और यहाँ पे मैंने सैंड लिया. जब मैं इनको मिक्सअप कर रहा हूँ तो सैंड क्या होता है, सैंड नीचे बॉटम में रह जाती है. तो सैंड भी अलग दिखाई दे रहा है और वाटर भी अलग दिखाई दे रहा है. यहाँ पे खाली एक चीज हमें फिर दिखाई दे रही है और वो क्या है, वाटर दिखाई दे रहा है. दैट मीन एक ही फेज हमें दिखाई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. जहां पे सेपरेशन ऑफ फेजेस होगा, जहां पे सेपरेशन ऑफ फेजेस होगा, दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस मिलाने के बाद, किसी भी रेशियो में मिलाने के बाद, फिजिकली मिलाने के बाद, जब भी वहां पे हम क्या देखेंगे सेपरेशन ऑफ फेजेस, सेपरेशन ऑफ फेजेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे उस टाइम शाबाश हेटेरोजेनियस मिक्सचर. इसी तरह अगर हम मिसाल के तौर पर पानी में क्या डालेंगे, ऑयल, अगर हम पानी और ऑयल डालेंगे तो वहां पे अभी क्या होता है, ऑयल ऊपर रहता है और पानी नीचे रहता है क्योंकि वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज्यादा होती है. तो यहाँ पे अभी क्या होता है सेपरेशन ऑफ फेजेस, दो अलग अलग फेजेस दिखाई दे रहे हैं, सेपरेशन ऑफ फेजेस यहाँ पे भी होता है. तो इसको भी हम क्या फिर बोलते हैं शाबाश, यहाँ जैसे हम चाक डालते हैं किसमें, पानी में, तो वहां पे भी सेपरेशन, तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर. पर अगर आप अल्कोहल डालोगे पानी में तो वहां पे एक ही फेज दिखाई देगा, तो उसको वहां पे सेपरेशन ऑफ फेजेस नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन. अब सवाल है, क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब मैंने इसको पूरे डिटेल में पढ़ाया था, मैंने क्यों बताया, क्योंकि शायद उसमें जब हमने उसको अपलोड किया था उसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर रहा हूँ. उसके बाद मैंने बताया था जो जब भी हम सोल्यूशन बना रहे हैं, इस ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है शाबाश 1 नैनोमीटर. ये होता है यहाँ पे पार्टिकल साइज. क्योंकि और बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही याद रखना है कि 1 नैनोमीटर पार्टिकल साइज होता है ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स का. और दूसरी बात मैंने बताया था जो इसमें सबस्टेंसेस आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, जो केमिकल्स आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो दे डू नॉट कंबाइन केमिकली बट कंबाइन फिजिकली. ये और एक चीज मैंने बताया था, और एक चीज मैंने बताया इसमें इसके ये होमोजीनस होना चाहिए. ये 3 कंडीशन जरूरी है इसमें. एक तो इसमें क्या वो जितने भी सबस्टेंसेस आप आपस में मिलाओगे वो कंबाइन होने चाहिए फिजिकली, वहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए. पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए 1 नैनोमीटर. और जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो हेटेरोजेनस नहीं होना चाहिए बल्कि वो होमोजेनस होना चाहिए, वहाँ पे खाली एक फेज बनना चाहिए. 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है यहाँ पे, पर फिर भी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे पार्टिकल साइज होता है वो कितना होता है 1 नैनोमीटर. और आपको पता है, ये आपको जरूरी याद रखना, 10⁻⁹ मीटर होता है. अगर हम इसकी बात करेंगे शाबाश इन टर्म्स ऑफ मीटर, और इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. जब हम करेंगे 10⁻⁹ मीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीपल करना है, तब जाके हमें क्या मिलता है शाबाश 10⁻², तो -9 10⁻², वो क्या बन जाता है शाबाश 10⁻⁷ सेंटीमीटर. हम कैलकुलेट करते हैं. मगर
कंडीशंस भी अब मैंने बताए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल साइज होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, कि उसमें शाबाश ट्रू सॉल्यूशन में। तो जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, एक तो वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, और दूसरी बात यह है कि दैट मीन्स दिस ट्रू सॉल्यूशन ये एक स्टेबल सॉल्यूशन होनी चाहिए। स्टेबल सॉल्यूशन दैट मीन्स सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट टेक प्लेस। पार्टिकल यहाँ पे सोल्यूट हम लेते हैं, आगे जाके हम देखेंगे फिर, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने केमिकली आप कितने सबस्टेंसेस को आपस में मिक्सअप कर रहे हैं। अगर आप दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्सअप करते हो बाइनरी, अगर तीन ट्राइनरी, और अगर चार तो जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरनरी। तो इस तरह यहाँ जब हम तीन मिलाते हैं तो उसको हम टर्नरी भी बोलते हैं, और जब हम चार मिलाते हैं तो क्वार्टरनरी बोलते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की सोल्यूशन है हमारे पास, जो हमारे सिलेबस में है वो है बाइनरी।